العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں عصبہ بغیرہ سے متعلق فوائد ثلاثہ، 3 اہم فوائد پر گفتگو کرنی ہے. فائدہ اولا، عصبہ بالغیر بنانے والے 4 مرد اور نہ بنانے والے 6 مردوں کا بیان. یاد رکھیں، دنیائے میراث میں 4 مرد ایسے ہیں جو اپنی اپنی بہنوں کو عصبہ بالغیر بناتے ہیں. نمبر 1، ابن بیٹا اپنی بہن بنت کو. نمبر 2، پوتا ابن الابن اپنی بہن بنت الابن پوتی کو. نمبر 3، عینی بھائی اپنی بہن عینی بہن کو. اور نمبر 4، اللاتی بھائی باپ شریک بھائی اپنی بہن اللاتی بہن کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چاروں مرد اپنی اپنی بہنوں کو عصبہ بالغیر کیوں بناتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چاروں مرد اپنی اپنی بہنوں کو عصبہ بالغیر بطور احسان کے نہیں بناتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اپنی بہنوں کو اس لیے عصبہ بالغیر بناتے ہیں تاکہ اپنی ذات سے ضرر و نقصان کو دور کر سکیں. اس لیے کہ اگر یہ چاروں مرد ابن بنت کو عصبہ نہ بنائے، ابن الابن بنت الابن کو عصبہ نہ بنائے، عینی بھائی عینی بہن کو عصبہ نہ بنائے، اللاتی بھائی اللاتی بہن کو اگر عصبہ نہ بنائے تو 2 بڑی خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم آئے گی. پہلی خرابی یہ لازم آئے گی تفضیل الانثى علی الذکر، کہ مؤنث کا حصہ مذکر کے حصے سے بڑھ جائے گا. اور اگر یہ پہلی خرابی لازم نہ آئے تو دوسری خرابی لازم آنے کا چانس ہے، اور وہ ہے تساوی بین الذکر والانثى، مذکر و مؤنث دونوں کا حصہ برابر ہو جائے. اور یہ دونوں خرابی للذکر مثل حظ الانثیین قاعدہ قرآنی کے خلاف ہے. اس لیے کہ قرآن کا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ مرد کو ڈبل ملے اور مؤنث کو سنگل ملے، تاکہ تفضیل الذکر علی الانثیٰ پایا جائے، مذکر کو مؤنث پر فضیلت حاصل ہو. لیکن اگر یہ چاروں مرد اپنی اپنی بہنوں کو عصبہ بالغیر نہ بنائیں تو ان کا اپنا ذاتی نقصان ہوگا، اس طور پر کہ مذکر ہونے کے باوجود سنگل ملے گا اور مؤنث کو ڈبل مل جائے گا، یا مذکر کو مؤنث کے برابر مل جائے گا. تو اپنی ذات سے اس دونوں قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے یہ چاروں مرد اپنی اپنی بہنوں کو عصبہ بالغیر بناتے ہیں. یہ جو 2 نقصان کا میں نے ذکر کیا، اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں. بورڈ پر فوکس کریں. تفضیل الانثى علی الذکر کی یہ مثال ہے جس میں مؤنث کو مذکر پر فضیلت حاصل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شوہر ہے، اولاد کی موجودگی میں اس کو ربع دے دیا. بنت ہے، اس کو ہم نے نصف دے دیا، کیونکہ ابن نے اپنی بہن کو عصبہ نہیں بنایا اور ابن کو ہم نے عصبہ بنا دیا. اب 4 سے مسئلہ بنا، 4 کا چوتھائی شوہر نے لے لیا، 4 کا آدھا 2 یہ بنت نے لے لیا، بچا ہوا 1 وہ بیٹے نے لے لیا. آپ دیکھ رہے ہیں تفضیل الانثى علی الذکر کہ اس مؤنث کو ڈبل مل رہا ہے اور ابن مذکر کو باوجود مذکر ہونے کے سنگل مل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ مؤنث کو دگنا نہ مل جائے، اس لیے یہ ابن بنتوں کو اپنے ساتھ عصبہ بالغیر بناتا ہے. دوسری مثال تساوی بین الذکر والانثى، مذکر و مؤنث کے درمیان تساوی کی مثال. آپ دیکھ رہے ہیں مسئلے میں بنت موجود ہے، اس کو ہم نے نصف دے دیا. فرض کیا کہ ابن نے اپنی بہن کو عصبہ نہیں بنایا اور ابن کو ہم نے عصبہ بنا دیا. نصف کے ہم نام عدد 2 سے مسئلہ بنا، 2 کا آدھا بنت نے 1 لے لیا، بچا ہوا 1 وہ ابن نے لے لیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں ابن مذکر کو بھی 1 مل رہا ہے، بنت مؤنث کو بھی 1 مل رہا ہے، دونوں کو مساوی طور پر مل رہا ہے، برابر سرابر مل رہا ہے. تو اس مذکر نے جب یہ خطرہ دیکھا، یہ نقصان دیکھا، تو اس نقصان سے اپنی ذات کو بچانے کے لیے بنت کو اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر بنا لیا. دنیائے میراث میں 6 مرد ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کو عصبہ بالغیر نہیں بناتے. نمبر 1، باپ اپنی بہن پھوپھی کو.
नंबर 2 दादा अपनी बहन पर फूफी को, अम्मतुल अम्मा पर फूफी को। नंबर 3 इब्नुल अख भतीजा अपनी बहन बिन्तुल अख भतीजी को। और नंबर 4 चचा अपनी बहन अम्मा फूफी को। नंबर 5 इब्नुल चचा का बेटा अपनी बहन बिन्तुल चचा की बेटी को। और नंबर 6 इब्नुल मौतिक आजाद करने वाले का बेटा अपनी बहन बिन्तुल मौतिक आजाद करने वाली की बेटी को। ये 6 मर्द, बाप, दादा, भतीजा, चचा, चचा का लड़का और मौतिक का लड़का, ये 6 मर्द अपनी बहनों को असबा बिलगैर नहीं बनाते। सवाल ये पैदा हुआ कि ये 6 मर्द अपनी बहनों को असबा बिलगैर क्यों नहीं बनाते? तो इसका जवाब ये है कि इन 6 में से अव्वल जिक्र जो 5 हैं, बाप, दादा, चचा, भतीजा और चचा का लड़का, ये 5 असबा बिनफ्सी ही हैं, असबाते नसबिया में से असबा बिनफ्सी ही हैं। लेकिन इनकी जो बहन है, बाप की बहन फूफी, दादा की बहन अम्मतुल अम्मह पर फूफी, चचा की बहन फूफी, भतीजे की बहन भतीजी और चचा के बेटे की बहन चचा की बेटी, ये पांचों के पांचों ज़विल अरहाम में से हैं। और ज़विल अरहाम का हुक्म ये है कि वह असबाते नसबी की मौजूदगी में महरूम हो जाते हैं। लिहाजा ये पांचों भाई चूंकि असबाते नसबिया में से हैं और इनकी बहनें ज़विल अरहाम के कबील से हैं, और ज़विल अरहाम को उस वक्त हिस्सा मिलता है जबकि असबाते नसबिया में से कोई ना हो। गोया असबाते नसबिया को तकद्दुम हासिल है ज़विल अरहाम पर, लिहाजा असबाते नसबिया की मौजूदगी में ज़विल अरहाम महरूम हो जाते हैं। यही वजह है ये पांचों भाई अपनी अपनी बहनों को असबा बिलगैर नहीं बना पाते। अगर ये पांचों अपनी बहनों को बावजूद उनके ज़विल अरहाम होने के असबा बिलगैर बना ले तो हक़्क़े तअख़ुर रखने वाले को हक़्क़े तक़द्दुम देना लाजिम आएगा, जो बिल इज्मा बातिल है। नीज चूंकि इनकी बहनें असहाबुल फराइज के कबील से नहीं है कि ये उनको अगर असबा बिलगैर ना बनाए तो 2 खराबियों में से कोई खराबी लाजिम आए, जिनका तस्करा भी हुआ, तफजीलुल उनसा अला ज़कर, मुअन्नस को मुज़क्कर पर फजीलत हासिल हो जाए, तसावी बैन ज़करी वल उनसा, मुज़क्कर और मुअन्नस के दरमियान बराबरी पाई जाए। ये दोनों खराबी का डर तो उस वक्त था जबकि भाइयों की बहनें असहाबुल फराइज में से हो, और यहां इन पांचों मर्दों की बहनें असहाबुल फराइज में से नहीं है कि इन खतरे से बचने के लिए वो अपनी बहनों को असबा बिलगैर बनाएं। इस वजह से ये लोग अपनी बहनों को असबा बिलगैर नहीं बनाते। रही बात इब्नुल मौतिक कि ये अपनी बहन बिन्तुल मौतिक को असबा बिलगैर क्यों नहीं बनाता, तो इब्नुल मौतिक ये असबा सबबी है, नसबी नहीं है। और इब्नुल मौतिक की जो बहन है वो सिरे से वारिस ही नहीं है, ना तो असहाबुल फराइज में से, ना तो ज़विल अरहाम में से। अब अगर इब्नुल मौतिक अपनी बहन बिन्तुल मौतिक को असबा बिलगैर बना दे तो एक गैर वारिस को वारिस बनाना पाया जाएगा, जो बिल इज्मा बातिल है। यही वजह है कि छठा मर्द इब्नुल मौतिक अपनी बहन बिन्तुल मौतिक को असबा बिलगैर नहीं बनाता। यह आपके सामने पूरी तफसीली गुफ्तगू आ गई। फायदा सानिया, असबा बिलगैर में मुज़क्कर को डबल और मुअन्नस को सिंगल मिलने की क्या हिकमत है? उलमा ने इसकी चंद हिकमतें बयान फरमाई हैं। नंबर 1, मुज़क्कर में चूंकि 2 हाजतें होती हैं, एक हाजतुल लिनफ्सिही, मुज़क्कर की अपनी पर्सनली हाजत, अपनी जात की हाजत। नंबर 2, हाजतुल लिइयालिही, उन लोगों की हाजत जो उसके मातहती में है, बीवी, बच्चे वगैरह। तो मर्द में डबल हाजत है, बरखिलाफ औरत के कि औरत में सिंगल हाजत है, सिर्फ हाजतुल लिनफ्सिही। लिहाजा मर्द के डबल हाजत को मद्देनजर रखते हुए यहां मां को मुज़क्कर को डबल दे दिया और मुअन्नस के सिंगल हाजत को मद्देनजर रखते हुए उसको एकहरा यानी सिंगल दिया। ये पहली वजह है। दूसरी वजह, बाबे शहादत में मर्द को बाबे शहादत में एक मर्द की गवाही 2 औरतों के कायम मकाम है।
लिहाजा जब एक मर्द की गवाही 2 औरतों के कायम मकाम है तो 2 औरतों का हिस्सा तने तनहा मर्द डबल लेगा और औरत सिंगल लेगी। तीसरी वजह उलमा ने लिखी है कि मर्दों में बनिस्बत औरतों के कमाल अक्ल होता है, इसीलिए मर्द मनासिब पर फाइज होता है, मसलन कज़ा, इमामत वगैरह की सलाहियत वो अपने अंदर रखता है, इसीलिए मर्द को डबल दिया गया। चौथी वजह उलमा ने लिखी है कि औरतों में नुकसान अक्ल के साथ कसरत शहवत का माना है। अगर औरतों को डबल दे दिया जाए तो वो अपने नुकसान अक्ल की वजह से, कसरत शहवत की वजह से माल को बेमहल यानी गैर महल के अंदर खर्च करेंगी। इस वजह से औरतों को सिंगल दिया और मर्दों को डबल दिया। फायदा सालिसा, तीसरा अहम फायदा, मुत्तफक अलैह वारिसीन की 4 किस्में। पहली किस्म वो वारिसीन जो सिर्फ फर्जियत से वारिस होते हैं, ऐसे वारिसीन 7 हैं। नंबर 1 अखियाफी भाई, नंबर 2 अखियाफी बहन, नंबर 3 शोहर, नंबर 4 बीवी, नंबर 5 माँ, नंबर 6 दादी, नंबर 7 नानी। ये 7 वारिसीन ऐसे हैं जिनको सिर्फ फर्जियत से मिलता है, असबियत से नहीं मिलता है। दूसरी किस्म वो वारिसीन जो सिर्फ असूबत की वजह से, असबा होने की हैसियत से वारिस होते हैं, उनमें फर्जियत का माना बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे वारिसीन भी बतौर इख्तिसार 7 हैं। नंबर 1 बेटा, नंबर 2 इब्नुल इब्न पोता, नंबर 3 अखे ऐनी, नंबर 4 इब्नुल अख ऐनी व इल्ली, और नंबर 5 अम चचा, नंबर 6 इब्नुल अम चचा का बेटा, नंबर 7 जुल वला यानी मोतिक। यहां बतौर इख्तिसार की कैद इसलिए लगाई कि यहां व इन सफलू के साथ हुक्म मुताल्लिक होगा कि बेटा नहीं है तो पोता, पोता नहीं है तो परपोता, अखे ऐनी नहीं है तो इब्नुल अख ऐनी। इस तरीके से चूंकि व इन नजलू व इन बऊदू व इन सफलू के साथ में ये हुक्म मुताल्लिक होता है, इसलिए यहां बतौर इख्तिसार की कैद लगाकर असबा से वारिस बनने वाले वारिसीन के 7 अफराद आपके सामने गिना दिए। किस्म सालिस वो वारिसीन जो फर्जियत व असबियत से इनफिरादन व इज्तिमाअन दोनों एतबार से वारिस होते हैं, यानी सिर्फ फर्जियत से भी वारिस होते हैं, असबियत से नहीं, सिर्फ असबियत से भी वारिस होते हैं, फर्जियत से नहीं, और बैक वक्त फर्जियत व असबियत दोनों से भी वारिस होते हैं। ऐसे वारिसीन सिर्फ 2 हैं। नंबर 1 बाप, अगर मुजक्कर औलाद है तो सिर्फ फर्जियत से पाएगा, मुअन्नस औलाद है तो फर्जियत व असबियत दोनों से पाएगा, किसी किस्म की औलाद नहीं है तो सिर्फ असुबत से पाएगा। अहवाल में आपने पढ़ लिया। और दूसरा वारिस दादा है। चौथी किस्म वो वारिसीन जो फर्जियत व असबियत दोनों एतबार से वारिस होते हैं लेकिन इनफिरादन होते हैं, इज्तिमाअन नहीं। यानी अगर ये फर्जियत से वारिस होंगे तो असबियत से नहीं, और अगर असबियत से वारिस होंगे तो फर्जियत से नहीं, दोनों का इज्तिमा एक साथ में नहीं होगा, जैसे बाप दादा में हो जाता है कि बनात या बनातुल इब्न की मौजूदगी में बाप दादा को फर्जियत से भी मिलता है और असूबत से भी मिलता है। ये इज्तिमा बैनल फर्ज वल असूबा जैसे बाप दादा में हुआ, इन वारिसीन में नहीं होगा। अगर ये फर्जियत से पाएंगी तो असूबत की वजह से इन्हें नहीं मिलेगा, और अगर ये असूबत की वजह से वारिस हो रहे हैं तो इनको फर्जियत से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे वारिसीन 4 हैं। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 पोती, नंबर 3 ऐनी बहन, नंबर 4 अल्लाती बहन, कि ये फर्जियत की वजह से उस वक्त पाएंगी जब इनके मुकाबिल के भाई ना हो, और अगर इनके मुकाबिल के भाई मौजूद है तो ये असूबत की वजह से वारिस होंगी, फर्जियत की वजह से नहीं। अजीज तलबा बिहम्दिल्लाह, आज की इस मजलिस में असबा बिनफ्सिही जो असबए नसबी की पहली किस्म थी उसके मुताल्लिक भी गुज़िश्ता से पेवस्ता मजलिस में मबाहिसे अशरा पर जो मुश्तमिल गुफ्तगू थी वो पूरी हो गई, और आज की इस मजलिस में असबए नसबी की दूसरी किस्म असबा बिगैरिही से मुताल्लिक जो मबाहिसे 7 बहसें थी वो पूरी हो गई। इंशाअल्लाह आइंदा कल की मजलिस में असबए नसबी की आखिरी किस्म असबा मा गैरिही पर गुफ्तगू की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.